Good morning, children. How are you all? Welcome to English class, children. Okay. We are meeting after a long time, right, children? Yes. So today we will do a reader. Today we will do a new lesson imitator. A game of chance. Means एक ऐसा गेम जिसमें हम अपना we try our luck. Okay, children. So it's a story all about. And sometime in our life, one time or the other, we have definitely played this game. Everyone has played this type of game when they have tried their luck. Yes or no, children? So it's about a child who tried his luck in this type of game only. And what happens with him, that we will read in this story. Okay, children? I hope you all will enjoy it very much. It's a very nice story, children. And one thing I would like to say, and in this lesson also, the message is conveyed that luck and unluck is nothing. It only depends on us. Solely depends on us. It doesn't, for example, you are given an examination and you didn't pass. For example, if some person is sitting in a competitive examination and he or she has not studied well, and if they can't pass the exam, then they say, oh, it was our unluck or it was a misfortune that we couldn't pass the exam. It isn't that. Hard work always pays, children. Okay. Hard work always pays. Means if you have done hard work, nobody can stop you from winning. Because luck or unluck, it may work or not may work, but hard work will always work. So we should always work hard. Whatever we do, whatever our job is, whatever the work we do, we should always give our 100%. Rest we should leave to our God or our luck or something or the other. Okay, we will definitely get success. Hard work always pays, children. So we should always, your age is this only, your life, your age, you are going through that age only, that your life will depend on how you shape it right now, how you work right now. If you work hard, your future will be bright. If you don't work hard, your future will not be bright. It isn't that I am saying regarding studies only. Whatever work we do, for example, sports persons are there. They have worked hard to reach that position. Okay, children, one has to work hard. Whatever may be the his field maybe. But in respect of field, one has to work hard. Okay, children? So, we all should work hard. Now, let's start our story. A game of chance. एक ऐसा गेम जिसमें हम अपना लक ट्राई करते हैं. Every year, on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Fair means mela. Fair means in the mela. There was a fair in our village. कहते हैं हर साल ईद पर हमारे गांव में मेला लगता था. ईद was celebrated only one day, but the fair lasted many days. कह रहे ईद तो सिर्फ एक दिन मनती थी, लेकिन वो जो मेला था वो बहुत दिन चलता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. Tradesmen मतलब व्यापारी. व्यापारी.
मीन्स जो सामान बेचते हो, राइट, पैसे के लिए। तो ये कह रहे हैं बहुत दूर दूर से, वाइड एंड फ्रॉम फार एंड वाइड, मतलब बहुत दूर दूर से जो है व्यापारी वहां पर अपना सामान बेचने के लिए आया करते थे उस मेले में। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप एक सुई से लेकर एक भैंस तक वहां पर कुछ भी खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर। अब द राइटर्स अंकल टुक हिम टू द फेयर। भैया who worked for us at home came with us. Now their servant, whom the poet used to, the writer used to say, Bhaiya, he also went with them. There was a big crowd at the fair. और उस मेले में बहुत भीड़ थी। Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. Leading मतलब वो आगे उनको लेके जा रहे थे। अब इस भीड़ में से रास्ता निकालते हुए उनके जो अंकल है उनको दोनों को लिए जा रहे थे कि जब वो उनको उस मेले के अंदर जा रहे थे रास्ता बनाते हुए, तो उनको कई अपने फ्रेंड्स उस मेले में मिले। किनको? अंकल। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। नाउ अंकल्स फ्रेंड्स वॉन्टेड अंकल टू स्पेंड टाइम विद देम। मतलब कि वो जो अंकल के फ्रेंड थे वो चाहते थे कि वो जो अंकल है वो अपने, मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि अंकल उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने कहा, अंकल इनफैक्ट पूछा, he asked the writer whether he would go with भैया until he comes। मीन्स उन्होंने कहा कि क्या वो जो राइटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है कि क्या वो जो उनके साथ जो सर्वेंट उनका आया था जिनको वो भैया कहते थे, क्या वो उसके साथ मेला देख सकता है जब तक कि अंकल थोड़ा सा घूम कर आते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था उनको थोड़ा सा। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। और the writer wanted the same thing. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away। अब अंकल ने उनको पहले ही चेतावनी दे दी, वार्न कर दिया कि he is not to go far away, मतलब मेले में बहुत दूर तक नहीं निकलना है और कुछ भी नहीं खरीदना है जब तक कि अंकल वापस नहीं आ जाते। I promised that I would wait for him, and the writer promised his uncle that he would wait for him. He will not go too far away in that fair. Neither he will buy a single thing until his uncle comes. He promised that he will wait for him. Bhaiya and I went from shop to shop, and as usual, the writer with his Bhaiya. They went from shop to shop seeing the fair. Now they couldn't buy anything as the uncle has said, and so they just wandered like this, and they went from shop to shop seeing all the shops, what are they selling, what are they doing. There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. Now the writer saw so many things that he wanted to buy, but he couldn't, as his uncle has said not to buy anything until and unless he comes. So he is writing that he wanted to buy so many things, but he waited for his uncle. Then we came to what was called the lucky shop, and then they came across the shop whose name was the lucky shop. The shopkeeper was neither young nor old. Now the shopkeeper was a middle-aged man. मतलब वो बीच की उम्र का आदमी था, ना तो वो ज्यादा जवान था और ना ही ज्यादा बूढ़ा था। He seemed neither too smart nor too lazy. और ना तो वो बहुत ज्यादा चालाक लग रहा था और ना ही आलसी लग रहा था।
He wanted everybody to try their luck. As the name suggests, the lucky shop. The shop was also of this kind only. So the shopkeeper wanted everyone to try their luck at the shop. Means it was a, we can say, a shop of gambling. मतलब जुआ ही हो गया ना चिल्ड्रन, जब हम अपना लक ट्राई करते पैसा लगा के, जब हम चांस खेलते, इट्स अ काइंड ऑफ जुआ, राइट? कि हम उसे पैसा दे रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। इस साल लक लग जाए तो अच्छा, नहीं लगे तो बैड, राइट चिल्ड्रन? There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. So children, what was there? There were discs on the table with numbers 1 to 10 written on them on downside. All you had to do was to pay 50 paisa, pick up any 6 discs, add up the numbers on the disc and find the total. What was the game? That you have to pay 50 paisa to the shopkeeper, take any 6 discs, add up to them what is the amount, equal to that amount you can purchase anything from that shop. The article marked with that number was yours. और जितने का वो आपके अमाउंट आई है, उतने तक का कोई भी आर्टिकल आप वहां से खरीद सकते थे। नाउ व्हाट्स द गेम चिल्ड्रन? अब इसमें जुआ क्या है? 50 पैसा तो शॉपकीपर के जा ही रहे, राइट? और उसके बदले वो आपको 6 डिस्क दे रहा है, जिसकी कीमत के आप सामान वहां से ले सकते हो। An old man paid 50 paisa and selected 6 discs. एक ओल्ड मैन आया, उन्होंने 50 पैसा दिया और 6 डिस्क खरीदे। He added up the numbers on them and found the total was 50. और जब उसने उनका टोटल किया तो वो आया 15 रुपीज, मीन्स 15 नंबर आया। अब 15 रुपीज के इक्वलेंट वो उस शॉपकीपर से सामान खरीद सकते थे, कोई भी ऐसा सामान जिसकी कीमत, जिसका सेम प्राइस हो। He was given the article marked 15, which was a beautiful clock. अब जिस नंबर पे, जिस आइटम, जिस चीज पे 15 लिखा था वो थी एक क्लॉक। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन उन ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को वो क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 50 rupees. तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे 50 रुपीज दे दो, मैं आपको 50 रुपीज देता हूँ और मैं आपसे ये घड़ी दोबारा खरीद लेता हूँ। The old man went away very pleased, but the old man didn't agree, and he was not angry also, he was not disappointed also. He said, okay, today my luck was not there, and he went away smilingly, happily. और वो वहां से बिना कुछ गुस्सा किए या बिना उदास हुए वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया कि चलो ठीक है, आज मेरा लक नहीं था, मुझे घड़ी चाहिए नहीं। और जो उसके नंबर निकले उसके अकॉर्डिंग उसको घड़ी मिली थी, तो उसने कहा मुझे घड़ी चाहिए नहीं, तो मैं बिना ही कुछ लिए वहां से जा रहा हूँ। और बिना गुस्सा किए अच्छे मन से हंसी के साथ वो वहां से चला गया। Then a boy, a little older than I, tried his luck. और इतने में अगेन एक लड़का आया जो इस राइटर की एज से थोड़ा सा बड़ा था। उसने कहा कि चलो अब मैं अपना लक ट्राई करूंगा। He got a comb worth 25 पैसा। कॉम मीन्स चिल्ड्रन कंगा, कॉम मीन्स कंगा। उसने कहा, उसने जब 50 पैसे में अपना लक ट्राई किया तो उसको 25 पैसे की इक्वलेंट एक कंगा मिला। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। और ये सब जब चल रहा था तो वो जो शॉपकीपर था, जिसकी शॉप थी,
ना तो वो बहुत ज्यादा खुश था और ना ही वो बहुत ज्यादा उदास था। उसको ठीक था, उसको था कि ठीक है इट्स माई वर्क, सो मैं अपना काम कर रहा हूँ। ना तो बहुत ज्यादा खुश था कि वो आज मेरी कमाई होगी, आज मुझे अच्छा मिल रहा है, ना ही वो उदास था कि आज मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इट्स नथिंग लाइक दैट, सिंपल, ही वॉज अ सिंपल मैन। द बॉय ट्राइड हिज लक, ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। अब उस शॉपकीपर ने क्या किया, 25 पैसा उस लड़की को देके और वो कॉम्ब खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, और फिर उसने अगेन अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, और अब उसने 3 रुपीज का एक फाउंटेन पेन, चलो पहले इंक भरते थे हम, पहले ना इंक, आजकल तो टुडे नाउ डेज वी यूज बॉल पेन, बट एट आवर टाइम्स वी यूज टू यूज इंक पेन। हम इंक पेन यूज करते थे। So that in ink pen, one pen used to come fountain pen. It was very costly and very beautiful and very nice. तो उस बॉय ने 3 रुपीज का वो फाउंटेन पेन जीता। Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. और उस लड़के ने फिर अपना लक ट्राई किया, और दिस टाइम रिस्ट वॉच मतलब अपनी कलाई की घड़ी। कलाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट वी कॉल रिस्ट। ओके, राइट चिल्ड्रन। और उसने 25 रुपीज की एक कलाई की घड़ी जीती। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. और जब उसने फिर ट्राई किया, उसको लालच आ गया, वो हर बार कुछ ना कुछ जीत रहा था, तो अब इस टाइम उसको लालच आ गया, तो उसने एक टाइम और अपना लक ट्राई किया, और दिस टाइम he got a table lamp, उसको एक लैम्प मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज, और 10 रुपीज से भी ज्यादा का उसने प्राइस जीता। एंड व्हाट वाज इट? इट वाज अ टेबल लैम्प। द बॉय वाज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और वो जो बच्चा था वो बहुत ही खुश, क्योंकि उसने इतनी सब चीजें जीती थी, तो इतना खुशी से वो वहां से गया अपने सब इनाम को अपने साथ ले जाते हुए। तो काफी पैसा उसने अच्छा कमा लिया था, तो वो बहुत खुश था, और इतनी खुशी के साथ अपने सब सामान और पैसे के साथ वो वहां से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, सो दिस राइटर ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई हिज लक। वो भी ट्राई करना चाहता था कि क्या पता वो भी इतना कुछ जीत ले। एवरीवन वांट्स इट, इजंट इट? हम सब भी जब जाते हैं तो एक बार नहीं जीते, सो वी थिंक नो लेट्स ट्राई नेक्स्ट टाइम, maybe we will get a good thing, yes or no? So greed comes, एक लालच आ जाता है मन में कि नो नेक्स्ट टाइम चलो इसमें नहीं, सेकेंड चांस में हम जीत लेंगे, देन थर्ड चांस। इट्स अ ह्यूमन एटीट्यूड, ह्यूमन नेचर है ये। सो द बॉय ऑल्सो, द राइटर ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई हिज लक। आई लुक्ड एट भैया, और फिर उसने भैया की तरफ देखा कि भैया मुझे भी खेलना है। He encouraged me. I paid 50 पैसा and took 6 discs. और फिर वो भैया था, तो वो उसके लिए तो ये राइटर छोटा ही था, तो उसने कहा चलो कोई बात तुम खेलो। उसने भी उनको कहा कि तुम खेलो, और उसने राइटर ने 50 पैसा दिए और 6 डिस्क जो है वो परचेज कर ली, खरीद ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन इनका लक काफी अच्छा नहीं निकला। किसका? राइटर का। आई गॉट 2 पेंसिल्स, और इन्होंने बदले में केवल क्या जीता? ओनली 2 पेंसिल्स। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, और फिर उस शॉपकीपर ने उनसे वही पेंसिल 25 पैसा में वापस खरीद ली। मतलब उसको राइटर को 25 पैसा दे दिया,
और वो पेंसिल वापस परचेज कर ली, वापस खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, और फिर एज देखा था जैसे ह्यूमन नेचर होता है कि अरे हम इस बार नहीं जीते, क्या पता अगली चांस में जीत ले, वाई डोंट वी प्ले अ नेक्स्ट चांस, अ नेक्स्ट चांस एंड नेक्स्ट चांस। इट्स ह्यूमन नेचर, हम हर बार सोचते हैं, और अगर हम जीतते हैं तो भी हम सोचते हैं अरे यार इसे क्या पता अगली बार और अच्छा जीत जाए। सो इट्स ह्यूमन नेचर, अगर हम जीतते हैं तो हम सोचते हैं अरे और अच्छा खेलते हैं, लालच आ जाता है कि और अच्छा खेलेंगे और अच्छा जीतेंगे। और अगर हम नहीं जीतते देन ऑल्सो वी प्ले सो दैट वाई नॉट वी विल मे बी वी विल विन नेक्स्ट टाइम। हम यही सोच लेते कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो इस वाली चांस में, नेक्स्ट वाली चांस में हम लोग जीत लेंगे। एंड एज सच द राइटर ऑल्सो थॉट लाइक दिस ओनली, और यही राइटर ने सोचा, उसने कहा चलो इस बार मेरे को 2 पेंसिल दे, मेरे को 2 पेंसिल से मिली, क्या पता अगली बार मैं कुछ अच्छा जीत लूं। I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little well. और इस टाइम भी राइटर ने सिर्फ इंक की वो बॉटल ही जीती, जो उसकी भी कोई खास कीमत नहीं थी। I told you ना children, in our times we used to use ink pen. हम ink pen use करते थे, and we have to fill, liquid ink was there and we have to fill in that pen. And we used to carry it, we used to take ink also with us in school, क्योंकि वहाँ पे वो पेन की इंक खत्म हो जाती थी, उसको रिफिल करने को चाहिए होता था। Nowadays there are so many pens and ball pens, you don't have to do such things. हमारे hands, clothes, everything used to get dirty. Nowadays it's not like this. Many things have changed, children. Okay. तो इस जो सेकंड टाइम भी है, राइटर ने खाली एक इंक की बॉटल खरीदी जिसकी भी कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा, और शॉपकीपर ने वापस उसको 25 पैसा देके वो बॉटल भी खरीद ली। आई टूक अ चांस फॉर द 3rd टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। और फिर जो मैनेजर मैंने आपको बताया, राइटर ने फिर से अपना 3rd टाइम अपना लक ट्राई किया कि चलो इस बार मैं करके देखता हूँ, और इस बार भी वो अनलकी ही रहा, उसने कुछ खास अच्छा नहीं जीता। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक